ये हैं हमारे कैपिटल लेटर्स और ये हैं हमारे स्मॉल लेटर्स. These are our capital letters and these are our small letters. Let us pronounce the capital letters first. Capital letters और small letters का pronunciation same है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now let us link the alphabets with words. Alphabets को words के साथ link करते हैं. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog, G for grapes, H for hat, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yak, and Z for zebra. इन words को देखो, they are 3-letter words. ये 3-letter words हैं. All these words end with at, A-T, at. Cat, bat, hat, mat, rat. All these words end with N, A-N, an. Man, pan, fan, can, tan, ran. All these words end with et, E-T, et. Pet, net, jet, wet, set. All these words end with ig, ig, ig. Pig, dig, big, fig, wig. All these words end with op, op. Top, hop, mop, cop, pop. All these words end with oy, oi. Boy, toy. All these words end with ug, ug. Bug, jug, mug, rug, tug. All these words end with in, in. Pin, tin, bin, fin, win. All these words end with ox, ox, ox. Ox, box, fox. अब इन 3-letter words को डिटेल में पढ़ते हैं. All these words end with at, at. Cat, bat, hat, mat, and rat. All these words end with an, an. Man. Man का मतलब है आदमी. Next is pan. तवे को हम pan बोलते हैं. Next is fan. पंखे को हम फैन बोलते हैं. कैन, सोडा कैन या फिर कोक कैन, इसको हम कैन बोलते हैं. रैन, भागने को हम रैन बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज टैन. जब धूप में हम जाते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, इसको इंग्लिश में टैन बोलते हैं.
नेक्स्ट वन इज एट, ET, एट. दिस इज पेट. हमारे घर में जिस जानवर को हम पालते हैं उसको हम पेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज नेट. मछली पकड़ने के लिए हम नेट का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज एन एयरप्लेन, जेट. जेट बोलते हैं इसको. देन वेट. जब कोई चीज गीली होती है तब हम उसको वेट बोलते हैं. एंड दिस वन इज सेट. जब सूरज डूबता है तो हम उसको बोलते हैं सेट. द सन इज सेटिंग. फिर आते हैं ये वर्ड्स. ये इग, IG, इग. नेक्स्ट वी हैव दीज वर्ड्स, IG, इग. सो वी हैव पिग, डिग. जमीन को खोदना, इसको हम डिग कहते हैं. बिग का मतलब है बड़ा. फिग, फिग मीन्स अंजीर. देन वी हैव विग. इन दोनों लड़कियों ने विग पहना हुआ है. एक ने पिंक कलर का, दूसरे ने ब्राउन कलर का. सो दिस इज अ विग. All these words end with op, OP, op. First is top. Top एक खिलौना है. Next we have hop. Rabbit जब जंप करता है तो हम उसको hop बोलते हैं. Next we have mop. Mop हम जमीन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Next we have cop. पुलिस को हम इंग्लिश में cop भी बोलते हैं. And last pop. पॉपकॉर्न जब बनता है तो वो साउंड जो आता है उसको हम पॉप बोलते हैं. These words end with oy, OY, oy. Boy and toy. Boy for लड़का और toy खिलौने के लिए. All these words end with UG, ug. Bug, jug, mug, rug, tug. All these words end with IN, in. Pin, tin, win, bin, fin. All these words end with OX, 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 fox, box. मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. मैं का मतलब है I. एक होगा अ और लड़का है boy. मैं एक लड़की हूँ. मैं का मतलब है I. एक will translate to a और लड़की है गर्ल. इंग्लिश में हम लड़की को गर्ल बोलते हैं. मेरा नाम राजू है. मेरा इज माई. नाम इज नेम. राजू इज राजू. मैं खुश हूं. आई एम हैप्पी. मैं आई खुश मीन्स हैप्पी. मैं उदास हूं. आई एम सैड. मैं will translate to I. उदास का मतलब है sad. So it is I am sad. मैं उठता या फिर उठती हूँ. मैं will become I. उठने को हम wake up कहते हैं. सुबह जब हम उठते हैं तो हम उसको wake up बोलते हैं in English. So मैं उठता या फिर उठती हूँ will translate to I wake up. Next we have मैं सोता या फिर सोती हूँ. सोने को हम sleep बोलते हैं. So it is I sleep. मैं खाना खाता या फिर खाती हूँ. I eat food. मैं will become I. खाना food and खाता या फिर खाती इसको हम eat बोलते हैं. So I eat food. मैं पानी पीता या फिर पीती हूँ. I drink water. मैं will become I. पानी हो गया water और पीता या फिर पीती इसको हम drink बोलते हैं. So it is I drink water. अब हम इन दो शब्दों के बारे में सीखेंगे. That is this and that. We use this when objects are close to us. इसका मतलब है जब चीजें हमारे करीब होती हैं. When they are close to us, हमारे पास होती हैं, तब हम this का इस्तेमाल करते हैं. और जब चीजें हमसे दूर होती हैं, when they are far away, तब हम that का इस्तेमाल करते हैं. Now let us take the first sentence. यह एक कप है. This is a cup. यह ट्रांसलेट होता है to this. एक will be a cup. So यह एक कप है will translate to this is a cup. यह एक किताब है. This is a book.
किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं। यह एक खिलौना है, दिस इज अ टॉय। खिलौने को हम टॉय बोलते हैं। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब ये सारी चीजें जो है हमारे नजदीक है, इसीलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू दैट। वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। घर को हम हाउस बोलते हैं। वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। अब ये सारी चीजें जो हैं दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ओके, हमसे दूर है, इसलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ही एंड शी। ये दो वर्ड्स हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई पुरुष होता है, जब हम मेल को रिफर करते हैं तब हम ही का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज ही। और जब हम एक महिला को रिफर करते हैं तब हम शी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पहला सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा दोस्त है। अब ये दोस्त जो है वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। सो वी से ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, वह हो गया ही, मेरा माई, दोस्त इज फ्रेंड। अगर ये दोस्त एक लड़की होती देन वी वुड से शी इज माई फ्रेंड। लेट अस टेक द नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरी बहन है। बहन कौन होती है? शी इज अ फीमेल, वो एक लड़की है, इसीलिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। शी इज माई सिस्टर। वह, शी, मेरी विल बी माई। बहन, बहन को हम सिस्टर बोलते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट, वह मेरी माँ है। अब माँ जो होती है वो फीमेल होती है, वो महिला होती है, इसीलिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। वह मेरी माँ है, शी इज माई मदर। वह, शी, मेरी माई, और माँ को हम मदर बोलते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज फादर। वह मेरे पिता हैं। अब पिता जो होता है वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है, इसीलिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। वह मेरे पिता हैं विल ट्रांसलेट टू ही इज माई फादर। पिता को हम इंग्लिश में फादर बोलते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू दीज सिंपल सेंटेंसेस। मैं स्कूल जाता या फिर जाती हूँ विल ट्रांसलेट टू आई गो टू स्कूल। स्कूल जाने को हम गो टू बोलते हैं। नेक्स्ट, मैं दोपहर में घर आता या फिर आती हूँ, आई कम होम इन दी आफ्टरनून। दोपहर को हम इंग्लिश में आफ्टरनून बोलते हैं। घर का मतलब है होम, और आने को, आता या फिर आती, उसको हम कम बोलते हैं। सो इट इज आई कम होम इन दी आफ्टरनून। मुझे चाय पसंद है। पसंद को हम लाइक बोलते हैं, और चाय को हम इंग्लिश में टी बोलते हैं। सो इट इज आई लाइक टी। नेक्स्ट, मुझे दूध पसंद है, आई लाइक मिल्क। दूध को हम इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं। पसंद विल बी लाइक, आई लाइक मिल्क। मुझे संगीत पसंद है, आई लाइक म्यूजिक। संगीत को हम इंग्लिश में म्यूजिक बोलते हैं, और पसंद को लाइक। मुझे शोर पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक नॉइज। शोर विल ट्रांसलेट टू नॉइज, और पसंद नहीं को हम डू नॉट लाइक बोलते हैं। सो इट विल बी आई डू नॉट लाइक नॉइज। Now let us look at these two parts of the screen. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कप जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज द टाइम वी यूज व्हाट इज दिस। और जब हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं हु इज। यह क्या है? यह एक कप है। What is this? This is a cup. यह कौन है? Who is this? यह राहुल है। This is राहुल। अब राहुल जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए we use who is this. कप जो है it is a thing. That is why हम यूज करते हैं what is this. क्या यह एक कप है?
इज दिस अ कप? हाँ, यह है। यस इट इज। अब ये एक चीज है, इसीलिए हम इसको इट बोलते हैं। क्या यह राहुल है? इज दिस राहुल? हाँ, यह है। यस ही इज। ये एक ह्यूमन बींग है, इसीलिए हमने ही का इस्तेमाल किया है। वी हैव नॉट यूज्ड इट। फॉर ह्यूमन बींग्स हम हमेशा ही, और अगर एक लड़की होती तो हम शी का इस्तेमाल करते। सो इट इज हाँ यह है। यस ही इज। हाँ का मतलब है यस इन इंग्लिश। यह है इज ही इज। तुम कौन हो? हु आर यू? मैं राहुल हूं। आई एम राहुल। तुम कैसे हो? हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। आई एम फाइन। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम विल ट्रांसलेट टू आर यू। खुश का मतलब है हैप्पी। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? हाँ, मैं खुश हूं। यस आई एम हैप्पी। हाँ को हम इंग्लिश में यस बोलते हैं। मैं खुशी का मतलब है हैप्पी। हाँ, मैं खुश हूं। यस आई एम हैप्पी। मैं चलता या फिर चलती हूं। आई वॉक। चलने को हम वॉक बोलते हैं इन इंग्लिश। मैं दौड़ता या फिर दौड़ती हूं। आई रन। दौड़ने को हम रन बोलते हैं। मैं बैठता या फिर बैठती हूं। आई सिट। बैठने को हम सिट बोलते हैं। मैं खड़ा या फिर खड़ी होता या फिर होती हूं। आई स्टैंड। खड़े होने को हम स्टैंड बोलते हैं। आई स्टैंड। मैं पढ़ता या फिर पढ़ती हूं। आई रीड। पढ़ने को हम रीड बोलते हैं। मैं नाचता या फिर नाचती हूं। आई डांस। नाचने को हम डांस बोलते हैं इन इंग्लिश। मैं जल्दी उठता या फिर उठती हूं। आई वेक अप अर्ली। जल्दी का मतलब है अर्ली इन इंग्लिश। उठने को हम आई वेक अप बोलते हैं। सो इट इज आई वेक अप अर्ली। मैं दांत साफ करता या फिर करती हूं। दांत को हम इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। साफ करने को हम ब्रश बोलते हैं। आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाता या फिर नहाती हूं। आई टेक अ बाथ। नहाने को हम टेक अ बाथ बोलते हैं। सो इट इज आई टेक अ बाथ। मैं नाश्ता करता या फिर करती हूं। आई ईट ब्रेकफास्ट। नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं और खाने को हम ईट बोलते हैं। मैं काम पर जाता या फिर जाती हूं। आई गो टू वर्क। काम को वर्क बोलते हैं इन इंग्लिश और जाने को गो टू। आई गो टू वर्क। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। भूख को हंग्री बोलते हैं इन इंग्लिश। मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। प्यास लगने को हम थर्स्टी बोलते हैं। सो इट इज आई एम थर्स्टी। मैं चावल खाता या फिर खाती हूं। चावल को हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं। खाने को हम ईट बोलते हैं। सो इट इज आई ईट राइस। मैं चाय पीता या फिर पीती हूं। आई ड्रिंक टी। पीने को हम ड्रिंक बोलते हैं और चाय को हम इंग्लिश में टी बोलते हैं। खाना गरम है। द फूड इज हॉट। गरम को हम इंग्लिश में हॉट बोलते हैं। खाने का मतलब है फूड। द फूड इज हॉट। मैं अंग्रेजी पढ़ता या फिर पढ़ती हूं। आई स्टडी इंग्लिश। अंग्रेजी का मतलब है इंग्लिश। पढ़ने को हम स्टडी बोलते हैं। सो इट इज आई स्टडी इंग्लिश। मैं शब्द लिखता या फिर लिखती हूं। आई राइट वर्ड्स। शब्द का मतलब है वर्ड्स इन इंग्लिश और लिखने को हम राइट बोलते हैं। आई राइट वर्ड्स। मैं किताब
पढ़ता या फिर पढ़ती हूँ। आई रीड अ बुक। किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, पढ़ने को हम रीड बोलते हैं। नेक्स्ट इज शिक्षक दयालु है। द टीचर इज काइंड। शिक्षक को हम टीचर बोलते हैं। दयालु का मतलब है काइंड। द टीचर इज काइंड। मेरा कुत्ता प्यारा है। माई डॉग इज क्यूट। कुत्ते को हम इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। माई डॉग इज क्यूट। प्यारा होगा क्यूट। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं। मेरी विल बिकम माई। दिस इज माई बुक। मुझे सेब पसंद है। आई लाइक एप्पल्स। सेब को हम इंग्लिश में एप्पल्स बोलते हैं। पसंद का मतलब है लाइक। उस चिड़िया को देखो। लुक एट दैट बर्ड। उस का मतलब है दैट। चिड़िया को हम इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं और देखो का मतलब है लुक। मुझे मदद चाहिए। आई नीड हेल्प। मदद का मतलब इंग्लिश में हेल्प है। चाहिए का मतलब है नीड। आई नीड हेल्प। मेरा बैग लाल है। माई बैग इज रेड। लाल in English will be red. मेरा is my. So it is my bag is red. अपने हाथ धो। Wash your hands. अपने का मतलब है your. हाथ का मतलब है hands. धोने का मतलब है wash. Wash your hands. मुझे क्रेयॉन दो। Give me the crayon. क्रेयॉन का मतलब है कलर पेंसिल, सो इसको हम क्रेयॉन बोलते हैं। गिव इंग्लिश में देने को हम गिव बोलते हैं। गिव मी द क्रेयॉन। गेंद नीली है। गेंद को हम इंग्लिश में बॉल बोलते हैं। नीली इज ब्लू, सो द बॉल इज ब्लू। ऊपर नीचे कूदो। जंप अप एंड डाउन। ऊपर नीचे का मतलब है अप एंड डाउन। कूदने का मतलब है टू जंप, सो हम बोलते हैं जंप अप एंड डाउन। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट। तेज का मतलब इंग्लिश में है फास्ट। दौड़ने का मतलब है कैन रन। दौड़ सकता विल ट्रांसलेट टू कैन रन, सो द सेंटेंस विल बी आई कैन रन फास्ट। आसमान नीला है। द स्काई इज ब्लू। आसमान जो है उसको हम स्काई बोलते हैं और नीले को हम ब्लू बोलते हैं। द स्काई इज ब्लू। मेरी पेंसिल कहाँ है? वेयर इज माई पेंसिल? कहाँ, कहाँ को हम वेयर, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो वेयर इज इट। कहाँ का मतलब है वेयर। वेयर इज माई पेंसिल? वह मेरी दोस्त है। शी इज माई फ्रेंड। दोस्त को हम इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। बिल्ली सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग। सोने को हम इंग्लिश में स्लीपिंग बोलते हैं। द कैट इज स्लीपिंग। आज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग टुडे। बारिश होने को हम रेनिंग बोलते हैं। इट्स रेनिंग टुडे।